Today we are discussing the circle drawing algorithms. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द सर्कल, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, ठीक है, लेकिन दोबारा से मैं इसको वो करूँगा, ठीक है. इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन that are equidistant from a given point O, means origin. Origin means center. The distance R from the center is called the radius and the point O is called the center. Twice the radius is known as the diameter and the angle of the circle subtend from its center is full angle equal to 360 degrees or 2 pi radians. अगर हम ये कह दें कि एक सर्कल है और इसकी फुल एंगल क्या है, so it is equal to 360 degree which is equal to 2 pi RAD. क्लियर. अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है R, तो all the points around it are at the equal distance from this position. सही. And double it is called the diameter and it is the angle 0 and it is the angle 360 degree. Clear? So rotating from this. So starting with the 0 angle, and when the complete circle is completed, it went to the 360 degrees, which is equal to the 2 pi radians. अब अगर आप यहाँ पर आप देखें, so we have the center XY with the radius R, and all the points on this circle are at an equal distance from this center, that is the X. So a circle has the maximum possible area for a given perimeter, the minimum possible perimeter for a given area. So the perimeter C of a circle is called the circumference, and is given by the C 2 pi R. अगर आप इसके ऊपर टूर कंप्लीट करेंगे, so this entire is called the circumference. So if a tour starting from this position and it goes, so what is the unit of the circumference? That is the unit of the radius. That is the unit of the radius. For example, if the radius is in inches, so the circumference will result in inches. If the radius is in meters, Yes, sir. so the circumference will give you the result in meters. Clear? Yes. Because the pi has no unit, because it is a ratio. Clear? So drawing a circle techniques, there are different techniques, ठीक है. One is by the Cartesian coordinates, one is called the polar coordinates and the other one is called the midpoint coordinates. There are the three different ones, ठीक है. So in the Cartesian coordinates, that works on the Pythagoras theorem. What is happening with this, that if you have an R which is equal to the radius, so x square plus y square whole under the root, that gives you the circle. And if you wish to plot the x or y, so it will be equal to, if you have for example y, so it will be equal to r square minus x square whole under the root. And similarly, if you wish to plot a y and x, so it will be r square minus y square whole under the root.
So if you have a center, the center is termed as the xc comma yc. For example, if this is the center, so it will be termed as the xc comma yc. So a point that is to be plotted at this point will be say for example x comma y. So finding an x and finding an I will give you the resultant value using these formulas. Using these formulas. अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि हाउ टू फाइंड अ वैल्यू समवेयर ऑन दिस सर्कल, तो अगर आप यहां पर आप देखें कि ये पॉइंट से फॉर एग्जांपल, so it will be y is equal to up say it is at this position, so it will be yc plus, अब इस एक्सिस के ऊपर आप जाओगे ना, तो x एक्सिस के ऊपर आप जाओगे तो क्या होगा ये हाँ बिल्कुल, तो क्या होगा ये इस सूरत में डी, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको बता दूँ। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं एमएस वर्ड को ओपन कर दूं, सॉरी वर्ड को, और उसी तरीके से मैं ग्राफिक लेआउट में बना दूं इसका, जैसे कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरीके से हम वो कर दें प्रिंट स्क्रीन, now if we have this point, it is 0 0, ये क्या हो हमारे पास 0 0 हो, हाँ 0 कामा 0 हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास एक पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल दिस वन, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या पॉइंट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ना, हाँ अच्छा, और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कामा 10 हो जाएगा ये, क्या सॉरी 10 कामा
9 होगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल ओके इट इज दिस पॉइंट, हाँ मैं इसको थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर दूं, कौन सा है? ये वाला। क्लियर? सो इट इज दिस पॉइंट दैट इज एक्स सी कामा वाई सी। अब यहां पर जो है मैं कह देता हूं कि इट इज अ पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है। क्लियर? और इस पॉइंट के ऊपर जो है मैं रेडियस गेट करना चाहता हूं। तो अब अगर इसको आप ले लें तो ये पॉइंट क्या होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर आप जाएं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इट विल बी 20। हाँ, अब अगर आप देखें ना तो 10 + 10 है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? 10 + 10। तो मैं अगर ये इस पर ये एक्स सी कामा वाई सी होगा, मैं इसको ले लेता हूं एक्स सी कामा वाई सी। शायद आपको अब समझ आने लगी। सो ये मैं असल में राइटिंग इस वजह से करूं कि फिर रिकॉर्डिंग में आए, अदरवाइज मैं उधर कर लेता हूं फिर रिकॉर्डिंग में नहीं आता, ये एक इशू है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट आपके पास होगा, ये वाला, तो अब ये अगर आप देख लें तो 29 हाँ 29 समझ आ गई कि नहीं? अब ये क्या होगा? एक्स सी इस ऐसे आप देख लें, एक्स सी प्लस आर, ये क्या होगा? एक्स सी प्लस आर कामा वाई सी होगा। नो, व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज 10 पॉइंट्स। रेडियस क्या है? 10 पॉइंट्स है। तो इनिशियल एक्स क्या है? इट इज 10। बात समझ आ गई कि नहीं? अब ये क्या है? XC + R। प्लस आर है। ठीक है, अब ये होगा ये सर वो ट्रांसलेट वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। जी। ट्रांसलेट नहीं, ट्रांसलेशन तो मैं नहीं कर रहा, मैं सर्कल ड्राइंग कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? सर्कल को ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है ना? ट्रांसलेशन वाला टॉपिक तो उसमें सिर्फ लाइन मोमेंट था, वो तो हमने कर लिया था। ठीक है, अब अगर इसके मुताबिक हम आए और इन पॉइंट्स को ले लें तो ये पॉइंट्स क्या होंगी? अब 20 कामा 9 होगा। सही? अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट अब क्या होगा? तो अगर आप देखें, मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। सही? अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें वैल्यूज को पुट करूंगा, इट विल गिव मी अ सर्कल। ठीक? अब अगर आप देखें, मैं चाहता हूं कि रेडियस को आपने मेंटेन रखना है, रेडियस को आपने मेंटेन रखना है। ठीक है ना? तो अब फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास 20 कामा 9 है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इसको आपने मेंटेन रखना है और इंक्रीमेंट करना है अभी आपने इसको। तो जब आप इसको इंक्रीमेंट करोगे तो x में वैल्यूज को आप पुट करोगे और y में वैल्यूज को आप पुट करोगे। समझ आ गई क्यों? अब इस बेस पर जो आपको लाइन ड्रा होगी, इट विल बी एन आर्क, इट विल बी एन आर्क। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या होगा कि आर को आपने
मेंटेन रखना है, आर को आपने मेंटेन रखना है। सर इसका सेंटर कौन सा होगा? सेंटर तो ये है ना, एक्स सी का वाई सी है। तो सर ये एक साइड पर रेडियस ज्यादा नहीं होगा, दूसरी साइड पे कम? क्यों? सर इस तरफ आर्क लगा है सर, हाँ, और सर ये दूसरी साइड पर इधर भी 10 होगा ना, इधर भी 10 है, इधर भी 10 होगा, हर साइड पर 10 होगा। जी सर। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इधर मैं करूंगा सर ये 10-9 जो है वहाँ पर ये सेंटर है इसका 10-9। 10 9, ये सेंटर है, ये सेंटर तो है। हम इजाफा सिर्फ एक साइड पे कर रहे हैं। अभी तो सबर करें ना, सबर करें ना, समझ आ रही है कि नहीं? अब ये इट इज 1 पिक्सल एंड इट हैज बीन हेडेड। अब नेक्स्ट पिक्सल कौन सा हेड होगा? वाई। देखें आप 1, अब देखें ना, इधर होगा ना, ये मैं देखें ये वाला आर्क मैं ड्रा करना चाहता हूं, ऐसे आर्क। जी सर। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इसमें आप देख लें कि जब नेक्स्ट पिक्सल अब ये हेड होगा तो कौन सा हेड होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, और ये 10। नहीं, ये मैंने गलत नहीं काउंट किया पहले वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? सही है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा? जाहिर ही तो हेड हो चुका है ना, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक? तो नेक्स्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। सही। अब इससे आगे जब हम जाएं तो फिर कौन सा होगा? आर आपने मेंटेन रखना है। आर आपने क्या करना है? यू हैव टू मेंटेन द आर। अब नेक्स्ट में होगा तो अब ये वाला या पिक्सल चूज होगा या ये वाला पिक्सल चूज होगा या ये वाला चूज होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब नेक्स्ट में आप देख लें कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए अब आप देखें ना, ये वाला पिक्सल है, हाँ, ये वाला पिक्सल है और ये वाला पिक्सल है, ये कैंडिडेट्स है। These 3 are the candidates। तो मैं इसको जरा और कलर से मैं इसको कलर कर देता हूं। ये मैंने इसको रेड से रेड किया, ठीक है, ये वाला। ठीक, ये 3 जो आपके पास आ गए, ये क्या है? अब कैंडिडेट पिक्सल्स हैं, ठीक। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर सेंटर से अगर हम इसको एक लाइन ड्रा करें, लाइन ड्रा कुछ है, जस्ट अच्छा, अब आप ये देखें कि आपने कौन से पिक्सल्स को काउंट करना है, ठीक। अब वो पिक्सल्स आपने काउंट करने हैं कि जो इस आइडियल लाइन के करीब होंगे, दोज आर नियर टू दिस आइडियल लाइन। तो अभी देखिए 1 2 3, देखिए 1, ये 2, ये 3 4 5 6, ये 7, और ये क्या 8, और ये 9, करीब है इसका ना, और ये 10। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब ये देखिए एक आर्क बन गया 3 पॉइंट्स का,
ऐसे, and arc is made for the 3 points. अब next आपने चूज करना है, you have to maintain the arc same. अब उसमें आप देख लें again ये कौन सा वाला होगा, तो ये 1 2 3 4 5, हाँ अब ये वाला है ना 6 7 8 9 और ये 9 है ना और ये 10, तो ये ऐसे होगा सही। अब नेक्स्ट में आप आए और ये वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब you have to maintain this distance, समझ आ गई कि? And you plot. So what are the pixels near to this line that is selected? Clear? अब इसमें जो issue आ रहा है वो क्या है? That is the calculation of the R. The calculation of the R and the square root, which is a time consuming job. Which is a time consuming job. It takes time in calculation. तो जितना टाइम ये कैलकुलेशन में लेगा उतना ये आपको इशू देगा। फिर एक और जो मसला आता है वो क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस सर्कल शुड बी लाइक दिस, लेकिन अगर आप यहां पर आप देखें तो ये सर्कल जो है आपको इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग ऐसे मिलता है। तो जितना ये ज्यादा होगा that much the algorithm will give you a rough type of shape. तो वो algorithm आपको क्या करेगा, शेप आपको रफ प्रोवाइड करेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि इट शुड बी फाइन, इट शुड बी फाइन, लेकिन इसमें ये मसला है। अब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपके साथ जो पिक्सल का साइज है और पिक्सल का डिस्टेंस है वो कितना है। यानी अगर पिक्सल आपस में करीब होंगे सो यू विल फाइंड अ फाइन इमेज, बट इफ the pixel size is a bit bigger and are a bit distant from one another, तो फिर ये आपके पास उतना ही ये रफनेस आपको देगा। ये आप अपने जहन में रखिए। मसलन अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये जो ब्लॉक्स हैं इससे बड़े होंगे तो जाहिर है कि पिक्सल का डिस्टेंस बड़ा होगा ना, हर कॉर्नर के ऊपर हम एक पिक्सल को कंसिडर करते हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर ये ब्लॉक्स का साइज छोटा होगा तो ये पिक्सल्स भी आपस में करीब होंगे। बात नहीं समझ आ रही? हाँ, तो मतलब अगर उससे फिर आपके पास ये इमेज बनेगा तो वो निस्बतन फाइन होगा। लेकिन ये है कि द सिलेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस वो एक इशू है इसमें, एंड दैट इज the calculation of the distance from the center or the origin that requires the coordinating the quadratic equation solution, which is a time consuming job। जी सर। बात समझ आ गई क्यों? So because of this it
takes more time in computation, Yes. one thing. The other thing, the image drawn with this equation will also be rough. वो भी rough होगा. Yes. बात समझ आ गई कि नहीं? Now we go for other types of equations. Then ये ड्रॉबैक शॉर्टकट इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना? ये अब आप देखें ना, यहाँ पर आपको ये इसमें इन्होंने डिस्कस की है, ठीक है? That is based on the polar coordinates. That is based on the polar coordinates. अब इसमें हमारे पास जो प्रोसीजर है वो क्या है? That is, if you have the center x and y, it is xc comma yc. So you find the x and y anywhere on circumference. the circumference based on given these two formulas. To find x, you are using x is equal to xc R plus. plus r cos theta and y is equal to yc plus r sin theta. And these two equation gives you Point of. the points on a circumference. Yes. बात समझ आ गई कि नहीं? No. For this purpose, if you have some point available over here, that is x comma y, Yes. and the theta, that is angle, is equal to 0, and radian is also equal to 0. Yes. Direct is theta angle 0 है तो Radian. radian भी 0 होगा, ठीक है? Now putting these values in this equation will result you the next point. Yes. अब आप देखें इसमें कि consider the R 10, आसानी की खातर, आसानी की खातर आप क्या करें, R को 10 ही आप कंसिडर करें, जिस तरह हमने दूसरे इक्वेशन में किया, ठीक? Now for this purpose, if you have x is equal to xc plus r cos theta, so assume x, y जो है हमने क्या लिया था, 10. 10 कामा 10 लिया था, 10 कामा 9 लिया था, तो क्या लिया था, 10 कामा 9 लिया था हमने, 10 कामा 9 है ना, सही? तो अब इसमें आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 10 प्लस r क्या है हमारे पास, 10 था, जी सर. and cos 0 0. will give you x1, आप इस तरह बोलें, Yes. समझ आ रही? आसानी की खातिर, ठीक? इसी तरीके से y जो है is equal to yc plus r sin theta. So yc is 9 Plus 10. plus 10 Sin 0. and sin 0 will result you the y1 for angle 0. क्लियर? अब मतलब इसको हम एक उसमें भी पुट कर सकते हैं, पूरे मतलब टेबल में भी हम इसको पुट कर सकते हैं. मसलन अगर हमारे पास ये एक टेबल हो एक्सेल शीट में, सर इसमें x2 y2 कैसे फाइंड करें? हाँ x2 y2. अभी करते हैं ना, इस पॉइंट को हल कर लेते हैं फिर आगे हम जाते हैं, ठीक है ना? एक्सेल को मैं ओपन कर दूं, That's 0 is equal to 1. अच्छा अब आप देखें ना,
इसमें मैंने लिख दिया एंगल, ठीक है, सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, एक्स सी, हाँ, इधर मैंने क्या लिख दिया, वाई सी लिख दिया मैंने, हाँ। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, एंगल, एंगल मैंने लिख दिया। अब इधर मैं लिख लेता हूं क्या, हाँ, x इज इक्वल टू एक्स सी प्लस, अच्छा इसमें एक मैं ऐड करता हूँ, ठीक है ना, आर डॉट कॉस एंगल। अच्छा इधर मैं एक और को भी ऐड कर देता हूँ, एक कॉलम को इंसर्ट, अच्छा इधर मैं आर को भी ऐड कर देता हूँ, आर, सही। अच्छा इसको मैंने थोड़ा सा ये कर दिया बड़ा, ठीक। अब यहाँ पर जो है मैं कर रहा हूँ y इज इक्वल टू वाई सी प्लस आर डॉट और एंगल, सही। अच्छा इधर मैं इसको लिख लेता हूँ क्या, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि आपको पता है ना ये डिस्क्रीट है ना स्ट्रक्चर, तो डिस्क्रीट में मसला ये होता है कि आप 1.5 नहीं हो सकता, या 1 होगा या 2 होगा, समझ आ गई चीज, या 1.6 1.7, तो कौन सा होना चाहिए, इसको हमने हल करना है, इंटीजर वैल्यू। हाँ, और इसको भी इंटीजर वैल्यू कर देते हैं। अच्छा एक इंटीजर वैल्यू x हो जाएगी, एक इंटीजर वैल्यू y हो जाएगी, ठीक। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अच्छा इसको इंटीजर वैल्यू x मैंने कह दिया, हाँ, और इसको मैंने क्या कह दिया, इंटीजर वैल्यू y मैंने कह दिया, क्या मैंने कह दिया, y मैंने कह दिया। अब xc क्या है, 10 है, सही, और yc क्या है, वो 9 है। अब एंगल क्या है, 0 है, r हमारे पास क्या है, 10 है। अब इसको इस फार्मूले में डालते हैं, समझ आ गई। अब इस फार्मूले में डालने के लिए हमें थोड़ा सा, मुझे तो आता है आपको, इक्वल एक्स सी, A2 है ना, बोले हाँ या ना, एक्स सी A2 है ना, एक्स सी आर कोस थीटा है ना, आर क्या है, D2 है, नहीं समझ तो बता दो, बाद में पे मैं नहीं समझा सकूंगा, समझ रहे हैं, कॉलम से बात याद करेंगे, मतलब जाहिर है ना, मैं फार्मूला में डालना चाहता हूँ ना, तो फार्मूला में जनरलाइज करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने इधर लिख दिया ना, जी सर, नहीं, या उधर भी वैल्यू डायरेक्ट फिक्स लिख दूँ। फिक्स का ये नुकसान होगा कि बाद में फिर मतलब आपको चेंज करना पड़ेगी ना, तो मैंने वैल्यू ऑफ द एड्रेस लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा ये, इक्वल, सॉरी ये, हाँ, A2 क्या होगा, एक्स सी प्लस आर, ठीक, जी सर, D2 कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय, क्या है, कॉस, 0 0 है, लेकिन ये एंगल है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है एंगल को,
एंगल इज इक्वल टू एंगल No, सॉरी sir. रेडियन, ठीक है ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 2 पाई। बात समझ आ रही है? So वो 2 pi radian हो गया। नहीं ऐसा नहीं है यार, सर एंगल मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 180 स्क्वायर पाई बाय 180। 1 समझ आ गई कि नहीं? अब इसके लिए कॉस है, तो कॉस एंगल क्या है, पहले एंगल है ना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय, समझ आई कि नहीं? पाई, ये पाई फिक्स एक वैल्यू है इसमें 3.14। 14176। हाँ, ये इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। मैं ये डाल दूंगा तो बस देखें ये लिखा हुआ आ गया है साथ में 3.141592653 चलते रहे। सर इससे 3.14। बेटा ये आपको राउंड ऑफ एरर एक कॉन्सेप्ट है, आप करेंगे ना जितना छोटा, यानी राउंडिंग जितना ज्यादा करें उतना एरर आपका बढ़ेगा। नहीं समझ आ रही बात? नहीं समझ आती तो मैं समझा दूं। नहीं सही होगा। यानी आपके पास देखिए 10,000 रुपये है ना, 1 रुपये के ऊपर आपने पर रुपए के तो पैसे इस पर तमने लगी, हाँ? समझिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 10,000 रुपये तो फिर आपको 1,000 रुपये टैक्स देना होगा, तो रुपए के ऊपर 1 पैसा तो कुछ भी नहीं है। अब आपके पास 1 लाख रुपए होंगे, 10,000। हाँ, तो फिर आपको बात समझ आ गई कि तो यू हैव टू पे। तो इस वजह से राउंड ऑफ को आपने नेगेट नहीं करना, डिवाइडेड बाय 180, सही, और ये एंटर। क्या गलती है इसमें, हाँ? अच्छा, ये असल में पाई इसने सी उठाया नहीं है, को पाई के साथ ये लगाना होता है, ठीक है ना। सही, समझ आ गई ना। अब इंटीजर वैल्यू इसकी यही है, इसका तरीका भी मैं समझा दूं, ठीक है ना। तरीका क्या है, सीलिंग क्या है, हाँ, ये इसमें जो वैल्यू होगी, ठीक, नहीं राउंड सीलिंग के नहीं, राउंड ऑफ करें, क्या सही। इसी तरीके से यहां पर भी यही सारा फार्मूला होगा, मैं इसको कॉपी कर दूं, ये फार्मूला, ठीक, कंट्रोल सी, क्या हो गया यार, ये मैंने कॉपी कर दिया, अब इसकी जगह मैं साइन डाल दूंगा, क्या, हाँ, साइन, सही, और ये मैंने डाल दिया 10, सही, हाँ। और इसके लिए भी वही राउंड का फार्मूला मैं डाल देता हूं,
क्या हो गया यार? और ये कामा 0, सही। Yes. अब एंगल जो है आपने, अच्छा ये और ये तो फिक्स है, सेंटर तो फिक्स है ना, समझ आ रही है बात की कि नहीं? अब एंगल पहले 0 है, फिर 1 है, हाँ, फिर 2 हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? बोलें। इसी तरह आप आए, सही। रेडियस उसी तरह से फिक्स रहेगा। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 90 तक। कितने तक? हाँ हाँ, कितने तक? 90 तक। चलो, ये मैंने कर दिया 90 तक, ठीक है। डिलीट। अच्छा, अब यहां पर आप आए और इसको आप जहन में रख दें कि ये कैसे बनेगा। तो रेडियस पड़ेगा, हाँ, रेडियस पड़ेगा नहीं, तो सर वहाँ पर क्यों पड़ा? किधर बढ़ रहा है? आज वही, अच्छा मैं समझ कि क्यों बढ़ रहा है। चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। इसी 10 को ही मैं ले लेता हूँ। मुझे भी लग शक हुआ कि ये वैल्यूज़ गलत आ रही हैं। बहरहाल अच्छा हुआ आपने ध्यान दिया, मुझे ख्याल करा दिया, ठीक है। सेट हो गई वैल्यूज़, ठीक है। वो मुझे लग रहा था कि इधर कोई गलती हो रही है ना, ठीक है। तो अब ये सेट हो गई ना वैल्यूज़, ठीक है। वो असल में मैंने सबके इकट्ठे खींच लिया ना, उसकी वजह से ये आ गया, ठीक है। बहरहाल अच्छा, अब ये 20 और 10 की तो आपको समझ आ गई, हाँ। अब देखें ना इसको, 10 का माना ये तो समझ आ रही है ना, हाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट में आपको क्या वैल्यू आ रही है? हाँ, 20 और 10 क्या आ रही है? हाँ, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या? 20 वही प्रेफरेंस सही। x1 और y1 की वैल्यू होगी ना, हाँ, x1 y1 की वैल्यू होगी किधर? ये पहले वाला x इंटीजर और y इंटीजर। हाँ हाँ हाँ, नहीं असल में इसको थोड़ा सा हमने वो मिस इंटरप्रेट थोड़ा किया हुआ है। बहरहाल मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है तो ये पुराने वैल्यूज जी। वो गलत आर के साथ वैल्यूज नहीं सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये असल में मैं थोड़ा सा ये कभी ये करता हूँ कभी ये करता हूँ ना, इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी कर, तो मैं ये वर्ड वाला फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक। अच्छा, तो ये जो कलर सही तो पुराने वाले हैं, ये तो आप फिलहाल भूल जाएं, ठीक है ना। अब इसके मुताबिक आप देख लें कि x में कौन सी वैल्यू आ रही है? 20 और ये 10। तो अब आप इधर से देखें ना, x एक्सिस के ऊपर कौन सा है? 20 है, और y के ऊपर क्या है? 9 नहीं इधर तो नहीं ना। अब इसके मुताबिक आप आए ना, ये इसके मुताबिक आप आए, ठीक है ना। हाँ, तो 10 आ रही है, ठीक है।
तो इसका मतलब आप आएंगे तो क्या होगी? 2010. तो नहीं, ये मैं देख लेता हूँ, सही है, ठीक है ना। यानी अगर एंगल 0 होगा ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर 20 होगा, बिल्कुल सही है। हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा? 20 होगा। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes. 1 2 3 सॉरी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Yes. ये सही है ना? point easy हो जाएगा. हाँ, Yes. नहीं नहीं, ठीक है, ये इधर हो जाएगा, ये 10। हाँ, और क्या है? Y10. y जो है क्या हो जाएगा? 10. 10 होगा। Yes, नीचे. अच्छा, किधर है ये? ठीक है ना, 10 होगा। सर नीचे से point. इससे नीचे अरे मैं ये जरा मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, बाहर रहा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो भी. 20 है और 10 है। ठीक है, Yes, sir. तो मतलब इसी पॉइंट को ही हिट करेगा, Yes. ठीक है ना। यानी अगर आप देखें ना इसमें तो 0 1 2 3 के लिए इसी 2 तक इसी एक पॉइंट को ही चूज करेगा, यानी उसमें नेक्स्ट पिक्सल को चूज नहीं करेगा। समझ आ रही? Yes. अब नेक्स्ट आएगा, यानी अगर एंगल 3 हो जाएगा, सही, तो एंगल 3 होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर वही 20 होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये वाला पिक्सल चूज होगा, Increase. सही है ना। ये आप देखें, ये वाला होगा, सही, नीचे आगे 11 होगा ना। Yes, sir. अब नेक्स्ट आएगा क्या है ये कि 3 से लेकर 8 तक कोई फर्क नहीं आएगा। Yes. समझ आ गई? Yes. अब 9 से लेकर से फॉर्मूला थोड़ा सारी मिस्टेक वगैरह तो नहीं देगा. सही ऊपर इंटीजर वैल्यू आपने पूरा लिखे हैं. नहीं सही है, ठीक है, सही है. ये तो good. वो फार्मूले में तो सही लिखा, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है ना। अच्छा, अब इसके लिए क्या होगा? 14 तक ये 12 आएगा, ये वाला यही पॉइंट है. ऐसे, सही। अभी आप मतलब सारा होगा तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है ना। 14 तक ये होगा। अब नेक्स्ट क्या है? 15 से लेकर 20 तक 13. 13 होगा। Then 14. सही। Yes. अच्छा, अब नेक्स्ट में आएगा नहीं, ये एक अंदर चले जाएगा। नहीं, देखा आपने गलत करवाया मुझे ना, 18 तक, तो ये 13 हो जाएगा। अब 19 से 19 सिर्फ. और ये 19 से 20 तक दो एंगल्स के ऊपर ये क्या हो जाएगा? ये एक एंगल यहां पर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? समझ आ गई कि नहीं? X decrease. हाँ, X decrease. एक्स डिक्रीज हो गया है ना, आप देखें ना यहां से एक्स डिक्रीज हो गया है ना। Yes. समझ आ गई कि नहीं? और वाई जो है वो इंक्रीज हो. हाँ? इंक्रीज. नहीं, वाई वही 13 है ना। नहीं, वाई वही 13 है तो उधर ही रहेगा ना। Yes.
ये ऐसे होगा, ये उसी 13 पर ही रहेगा ना, सही। यानी वो एक कम हो गया और ये उसी पर है। अब इसमें आप देखें यहां से एंगल, ये जिधर चेंज, अच्छा ये यहां तक, तो 19 और 14 होगा। ये क्या होगा? 19 और 14 होगा। यानी 19 ये ऐसा होगा और ये वाला होगा। समझ आ गई कि नहीं? इतने एंगल्स तक। अच्छा, अब नेक्स्ट में आए आप, ये 27 से लेकर 31 तक 19 और क्या होगा? 15 होगा। ये मतलब थोड़ा सा दिल बड़ा करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? 19 और ये 15 होगा, सही। अब 32 से लेकर ये 18 और 15 होगा। ये क्या होगा? 18 और 15 होगा। ये बढ़ेगा नहीं, ये ऐसे आएगा, सही। अच्छा, अब नेक्स्ट में छोटा सा एक आर्क बना लेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी, खैर है। अब ये जो है 18, 18, 18, 18, 18, 40 तक, ये 18 और 16 रहेगा। ये क्या रहेगा? 18 और ये 16, सही। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 41 से लेकर, सॉरी, अच्छा सिर्फ 41 पर, 41 पर क्या? ये 18 और 17 है। ये 18 और 17 है, सही। अच्छा, नेक्स्ट पर आप आए, 42 से लेकर ये 17, 17, 17, 17, ठीक। तो ये एक कम हो गया, ये वाला, सही। अच्छा, अब नेक्स्ट पर आए आप, नहीं, 49 पर क्या है? 17 और 18 है। 17 और ये 18 हो गया, सही। अब नेक्स्ट पर आप आए, 16 और 18, 16 और 18, 16 और 18, 56 तक कितना आ रहा है? 16 और 18, यानी ये होगा, सही। अच्छा, ये चाय समोसा हो तो फिर समझ आज ये 15 और ये 18, तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक कम हो गया, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, ये 15 और 19, हाँ, ये क्या? 15 और 19, 15 और ये 19, सही। अच्छा, 14 और 19,
अभी आपको खुद अंदाज़ा होगा, ठीक है ना। एक कम हो ये 14 और ये 19, हाँ? ये 13 और 19। सिर्फ दो ही है। अच्छा, अब आप मेरी हालत जार को भी देखें ना, मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ ना। ये 14 और ये 19 13 जी। 13 नहीं। अच्छा 13 19 सही सही, निशान तो सही लगा दिया ना। और दूसरा क्या है 13 20, ये 13 और ये 20 सही। किस एंगल तक हम पहुंच गए? 71 तक। अब ये 72 से ये 13 और 20 है सही। नीचे जाए। ये 12 और 20। अब ये किस एंगल से 12 और 20 तक? ये 12 और ये 20 सही। ये 12 20 तो हो गया ना। 11 और 20 क्या? 11 ये 11 और 20। हाँ और 20 और आखिर में क्या? 10 और 20। ये 10 और ये 20 90 तक पहुंच गए। सही है। सही। अब आप इसको देखें। अच्छा ये लाइन ऐसे आपके पास आएगी, ऐसे। बिल्कुल ओरिजिन सर। अब अगर आप इसको दूर से देखेंगे ना तो इट गिव्स यू 1 आर्क, समझ आएगी। लेकिन ये आपको इसकी वजह से जरा ऐसे लग रहा है ना कि वो तो आपको पता है ना कि सेक्शन के बीच में का डिस्टेंस नहीं होता, but I think you are understanding what is I wish to convey. With this way it completes one arc. Similarly for the rest of the arcs. So a circle has 4 identical areas. अगर हम इसको सर्कल में करेंगे ना तो ये ऐसे होगा। तो अगर ये है तो इसके कंट्रास्ट में ये होगा, ये है तो इसके कंट्रास्ट में ये होगा। आई थिंक बात की समझ आ गई, ठीक है। सर यहाँ मार्कर कर सकते हैं। हाँ मार्कर पर क्या? लैपटॉप में। लैपटॉप में ज़रा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि अब चलो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ये रेट से ही सारे कर देता हूँ, ठीक है। ये तो कर दिया है ना, सही। पहले से अच्छा वो आपने बता दिया। नहीं इसका मसला ये है कि फिर रिकॉर्डिंग में ना ये पॉइंट्स आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए मैं इस टेबल के मुताबिक ही ये तमाम निशान मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर उस टाइम मुझे कहते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन बस क्या करें। आप सब हाँ बिजी थे तो मैं नहीं वो बात आपकी भी सही है। मुझे तो लगता है ना कि बस सिर्फ आप ही हो ना, मुझे दूसरे क्लास का जहन में नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, इसको मैं क्या कर देता हूँ, आपस में मिला लेता हूँ, ठीक है। ये इसी को ही मैंने उठा दिया, ठीक है। तो ये निशान देखिए ऐसे आ जाएंगी, सही।
असल में मैं ये माउस जरा निकाल दूँ, ये वाला अपने लैपटॉप से मैं लगाऊंगा तो अच्छा है, मतलब यू हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन। लेकिन ये है कि चार्ज ख़त्म हो रहे कौन वो कीजिए दा पे पता ही खता हुआ Yes. ये ऐसे हो, बस समझ आ गई, ठीक है ना। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँ क्योंकि बिल्कुल चार्ज मेरे पास मुकम्मल ख़त्म हो रहे, ठीक है। एंड विद दिस आल्सो दिस टॉपिक कंप्लीट।